Hello students, good morning. Students, I am sending this video to you guys on which is based on chapter number 5, Introduction to QBasic. In this chapter, we have almost we have completed the chapter. Only 2 points are remaining from the last point of the chapter that I will teach you through this video. I am going to teach you this thing through video uh, because I am busy with some schoolwork. That's why I am sending this video to you. If you don't understand anything from this video, you contact me, I will explain you. And tomorrow we are having lecture as well. So in tomorrow's lecture I will explain you everything. I will explain you points remaining. Once again I will explain you this chapter once again. So if anyone have missed this chapter, they can so for them it will be a revision. Okay guys, so let's start with the last point of the chapter. In this chapter, up till now we have learned that how to start a QBasic, working with QBasic, elements of QBasic programming, QBasic commands, and conditional statement. So the last point, which is conditional statement, in this point 2 points were remaining to teach. That is, just hold on. The points which we have learned in conditional statements are if then statement and if then else statement. This we have learned one week earlier. एक हफ्ता पहले हमने ये दोनों statements सीखे थे. Two statements were remaining, that is using else if with if then else statement and select case. So let's go with if using else if with if then else statement. Okay, so here I am going in QBasic software. In QBasic, here I have already written a program and I have saved a program with else if then else statement. With this name I have saved a program. So what you have to do over here in this program, what is mean by else if? First thing, what is mean by else if? एल्स इफ मतलब क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हो और उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं कि आपको 4-5 काम दिए गए और 4-5 में से आपको एक ही काम चूज़ करना है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, एल्स इफ. जैसे कि बर्थडे होता है, आप लोगों का बर्थडे होता है, तो बर्थडे के दिन आपके सामने क्या है, केक के बहुत सारे ऑप्शन रखे जाते हैं. ऑरेंज केक, मैंगो केक, ब्लैक फॉरेस्ट, वाइट फॉरेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन रखे जाते हैं. और आप क्या करते हो, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हो, उसी को हम कहेंगे एल्स इफ. कैसे, देखिए आपके पास ऑप्शन रखे, इफ़ यू वांट a black forest cake. If you want a black forest cake, purchase that cake. If you want a mango cake, else if you don't want black forest, purchase mango flavored cake. If you else if you don't want if you don't like mango flavor and black forest cake, what you can do, you can switch to other one, that is orange. Okay, else what you do, you take simple केक. ओके, तो क्या है आपके पास, इसका मीनिंग क्या है कि कई सारे ऑप्शन रखे गए हैं और उसमें से क्या करना है, एक को चूज़ करना है. उसी को हम क्या कहेंगे, एल्स इफ कहेंगे. कि 4 ला के रखे, जो आपको पसंद आए वो ले लो, जो नहीं पसंद आए उसे जाने दो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एट एल्स इफ विद इफ देन एल्स. सो लेट्स सी इट प्रोग्रामेटिकली. In this program, what we are seeing, that this one is a program of else if with if then else. In this program, first thing what I have done, I have used CLS statement. CLS stand for clear screen. मतलब जो भी प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट होगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसी इरेज करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, CLS कमांड. आफ्टर दैट हियर आई हैव टेकन अ प्रिंट कमांड. क्या लिया है मैंने, प्रिंट कमांड. इन प्रिंट कमांड हियर आई हैव टेकन दैट इंटर सैलरी आउट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब मुझे प्रिंट क्या करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट दैट वॉट एवर योर सैलरी माइट बी, उसे क्या करो, आप इंटर करो. तो ये इनपुट लेगा, क्या लेगा, इनपुट लेगा, क्योंकि मैंने क्या करने को बोला है, यहाँ पे इंटर करने को बोला है. मतलब आउटपुट जब डिस्प्ले होगा उसी वक्त ये क्या बोलेगा कि आप कुछ तो भी नंबर डालो. ओके, उसके बाद
आई हैव टेकन इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट में ना, एज आई टोल्ड यू, कि अगर हमें आउटपुट के वक्त अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो उसी वक्त हमें क्या लगता है, वी रिक्वायर अ इनपुट स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक। दिस थिंग आई हैव टॉट यू अर्लियर। तो इनपुट स्टेटमेंट में क्या किया मैंने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्या किया, एक वेरिएबल। आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल नेम्ड एज सैलरी। विच वेरिएबल आई हैव डिक्लेयर्ड, अ वेरिएबल नेम्ड एज सैलरी। तो इस वेरिएबल में क्या होने वाला है ना, जो भी अमाउंट हम इंटर करेंगे, जो भी अमाउंट, ये 3 अमाउंट आपको दिख रहे हैं, इसमें से जो भी अमाउंट हम इंटर करेंगे वो किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, इट विल बी स्टोर्ड इन सैलरी वेरिएबल। वो किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, इन सैलरी वेरिएबल। लाइक आई विल शो यू ओवर हियर नाउ। हियर सी, आई एम टेकिंग हियर सैलरी एस सैलरी वेरिएबल एंड इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे 30,000 दिया। तो ये जो 30,000 वैल्यू है, ये वैल्यू की कौन से वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, सैलरी वेरिएबल के अंदर। किसकी वैल्यू है ये, 30,000 सैलरी वेरिएबल की। ओके, सो हियर सैलरी वेरिएबल के अंदर क्या जाने वाला है, वैल्यू जाने वाली है जो हम आउटपुट के वक्त देंगे। देन अभी हमें कंडीशन अप्लाई करना है। हमारे लूप का क्या नाम है, एल्स इफ विथ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। एल्स इफ विथ इफ देन एल्स, दिस इज द नेम ऑफ आवर स्टेटमेंट। तो क्या करना है, उसे यूज करना है प्रोग्रामेटिकली। सो हियर आफ्टर टेकिंग इनपुट इनसाइड अ वेरिएबल, व्हाट प्रोग्राम विल डू, इट विल कम डाउन। कहाँ आएगा, इफ। कहाँ आएगा, हमने जो ये इफ स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है ना, इफ सैलरी इक्वल्स टू 30,000, if salary equals to 30,000, then print you are working as a programmer। क्या प्रिंट करो, कि आप क्या हो, प्रोग्रामर हो। मतलब अगर हमने क्या किया, यहाँ पे सैलरी लिखी, सैलरी इक्वल्स टू 30,000, सैलरी इक्वल्स टू 30,000 अगर हमने दिया तो क्या प्रिंट होगा, यू आर वर्किंग एज अ प्रोग्रामर। ये कहाँ प्रिंट होगा, नोटपैड पे नहीं होगा। दिस विल बी प्रिंटेड ऑन योर आउटपुट स्क्रीन। ओके, सेम वे में अगर हमने, बट यहाँ पे क्या बोला है, देन इफ सैलरी इक्वल्स टू 30,000 देन प्रिंट यू आर वर्किंग एज अ प्रोग्रामर। पर सपोज हमने यहाँ पे है ना 30,000 नहीं इंसर्ट किया, कितना इंसर्ट किया, 50,000। कितना इंसर्ट किया, 50,000। 30,000 नहीं डाला, 50,000 डाला। तो क्या करेगा, ये नीचे आएगा। क्या करेगा, नीचे आएगा। कौन सा स्टेटमेंट है, एल्स इफ। एल्स इफ नहीं ना, तो हम कुछ और देखते हैं। एल्स इफ का मीनिंग क्या है, ये नहीं है ना, तो हम कुछ और देखेंगे। तो एल्स इफ सैलरी इक्वल्स टू 50,000, मतलब सैलरी वेरिएबल के अंदर अगर 50,000 ये वैल्यू डाली, सैलरी वेरिएबल के अंदर 50,000 ये वैल्यू डाली, 50,000 ये वैल्यू डाली, तो क्या करना है, व्हाट शुड बी डन, प्रिंट यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर। क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर। कब प्रिंट होना चाहिए, इफ the salary entered by the user is 50,000, then what should be printed, that you are working as a manager। ओके, तो अगर आपने 50,000 डाला तो क्या प्रिंट होगा, मैनेजर। अगर 30,000 डाला तो क्या प्रिंट होगा, इंस्टेड ऑफ अ मैनेजर, प्रोग्रामर। सेम वे अगर आपने सपोज सैलरी 50,000 नहीं डाली, कितनी नहीं डाली, 50,000 नहीं डाली, 50,000 की जगह कितनी डाली, 65,000। यह एंटर सैलरी एज 65,000, यह एंटर वैल्यू एज 65,000 इनसाइड अ सैलरी वेरिएबल। तो क्या होगा, इट विल गो ऑन अ थर्ड ऑप्शन। इट विल गो ऑन अ थर्ड ऑप्शन, जहाँ थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है, so what is written over here, that else if salary equals to 65,000 then what should be printed on output screen। मतलब आपने 65,000 या आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, that you are working as a managing director। what you are working as a managing director। okay, this should be printed। okay, if you entered a value as 65,000 तभी, पर आपने क्या किया, लास्ट पार्ट कौन सा हमारा, दैट इज एल्स। व्हाट इज लास्ट पार्ट, एल्स। एल्स में क्या है, प्रिंट यू एंटर्ड सैलरी, यू एंटर्ड अ रॉन्ग सैलरी, यू एंटर्ड अ रॉन्ग सैलरी। मतलब सपोज आपने 65,000 या फिर
आपने 50,000 या फिर आपने 30,000 की जगह और कोई सैलरी अमाउंट इंसर्ट किया और कोई सैलरी अमाउंट दिया, तो क्या होगा? अगर आपने सपोज इन सब के अलावा आपने एक सैलरी अमाउंट डाल दिया लाइक 30, दिस वन, ये सैलरी अमाउंट डाल दिया, तो ये सैलरी अमाउंट आपने कहीं पे डिक्लेयर किया है क्या? इफ स्टेटमेंट के अंदर, या फिर सेकेंड इफ एल्स के अंदर, या फिर थर्ड इल्स एफ के अंदर? हाउ यू डिक्लेयर दिस वैल्यू? No, you are not declared this value. So for that, what will be printed? It will go on last part. Directly यहाँ से क्या करेगा? That all these things are wrong. ये सारी क्या है? All these part means first, second and third. All these are wrong. Directly it will jump on the last one, that is else. else का मीनिंग होता है नहीं, गलत. else का मीनिंग क्या होता है? गलत. तो क्या प्रिंट करेगा? You entered a wrong salary. You entered a wrong salary means suppose you entered a salary as 30,049. 30,049. So what will be printed? That you have entered a wrong salary. What will be printed on the screen? You have entered a wrong salary. Okay, this will be printed on the screen. Okay, now and if, now it's time to end, it's time for कंप्लीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट का क्या है? कंप्लीशन हो गया है. हमने सारा यहाँ से आए, यहाँ पे स्टेटमेंट चेक किया, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे स्टेटमेंट चेक किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, सब तरफ हमने क्या किया? स्टेटमेंट को चेक किया. जो स्टेटमेंट सही था वो क्या हो गया? प्रिंट हो गया. लास्ट में क्या है? नाउ इट्स टाइम टू एंड इफ लूप. इट्स टाइम टू एंड इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट को क्या है? एंड करने का वक्त है. आफ्टर एंडिंग इफ स्टेटमेंट, आफ्टर एंडिंग इफ स्टेटमेंट नेक्स्ट क्या करना है आपको? एंड जो है, ये जो लास्ट वाला एंड है, इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट यू आर एंडिंग अ प्रोग्राम. यू आर एंडिंग अ प्रोग्राम. सो नाउ इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम. क्लिक ऑन रन, क्लिक ऑन स्टार्ट, and okay, something is wrong over here. I will correct it. Okay, so now there is no need to give spacing between else if. Click on run, click on start, and here what it asks you for, it has asked you that enter salary out of the following. Enter salary out of the following. Enter salary out of the following. So here I am entering salary as 65,000 and pressing enter. So instead of 65,000, I think so I have given here 65 lakh. That's why it showed me you entered a wrong salary. Okay, again we will run the program. अब तीन ऑप्शन है, तीनों में से कुछ एक डाल के देखेंगे, like 50,000 and enter. Again I have given here wrong salary. So let's go in a program and see what is the salary. Just click on run, click on start, and here I am using 30,000 and press enter. So here it came that you are working as a programmer. You are working as a programmer. So in this way your outputs are displayed through different loops. Okay, just press enter, and now I am exiting from the code. So here I have completed the third point from conditional statement, that is else if with if then else statement. Remaining one point from the chapter and from conditional statement, that is select case, I will teach you tomorrow. Okay, I will teach you tomorrow, and I am sending this video to you guys because I am busy in school, because book checking of 8th standard is going on. That's why I am busy with that. That's why I am sending this video to you. But it's compulsory for everyone to watch this video, because based on this video tomorrow I am going to ask you questions as well कि आपको क्या समझा, क्या नहीं समझा. मैं सारे ये वीडियो के रिलेटेड कल आपको क्वेश्चन पूछूंगी. So be ready with it, and if possible try to practice QBasic. Try to practice this program at your home. Okay, so guys, thank you.